وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اپنے ہالینڈ کے ہم منصب اور ملالہ یوسفزئی سے ملاقات کریں گے۔ امریکی کانگریس کی رکن شیلا جیکسن کے ساتھ زوم ملاقات میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات یو این ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں ہوئی۔ متاثرین سیلاب کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اظہار تشکر۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ دکھی انسانیت کی آواز ہیں۔ انتونیو گوتریس پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے ڈونر کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف موسمیاتی تغیر کے باعث پاکستان کو بڑی قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں پاکستان کی مدد کرنی ہے۔ انڈر سیکرٹری جنرل گلوبل کمیونیکیشنز ملیسا فلیمنگ۔ جنرل اسمبلی کے موقع پر پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے تصویری نمائش کا انعقاد۔ نمائش کا مقصد سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نمائش دیکھی اور اس کے انعقاد کو سراہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور اہم امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کی سیلاب متاثرین کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کا خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات اور قومی دن پر مبارکباد کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ملاقات۔ صحت کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پولیو کے خاتمے اور کورونا کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو۔ بل گیٹس کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی مالدیپ کے اپنے ہم منصب عبداللہ شاہد سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی امور، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ موسمیاتی تباہی دونوں ممالک کی زندگی اور معاش کو متاثر کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو ملنے والی بین الاقوامی امداد ضروریات کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک ماہ بعد بھی سیلاب زدگان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ 3 کروڑ سے زائد متاثرین کو کھانا، پناہ گاہ اور طبی سہولیات فراہم کرنا ایک مشکل کام ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں خارجہ تعلقات کی کونسل میں گفتگو۔ انصاف کی فراہمی کے 75 سال ماضی کی کارگزاری اور مستقبل کے لاہ عمل کے عنوان پر جوڈیشل کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ سیلاب سے 3 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لوگ کھانا مانگنے پر مجبور ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ سیاست میں دھوم اور دھمکی کسی صورت روا نہیں۔ عمران خان کی لمبی زبان ہے جسے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ خالد سعد رفیق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی پہنچ گئے۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقے بدین جائیں گے۔ آرمی چیف ریلیف کے کاموں میں مصروف فوجیوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ISPR۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ NDMA نے سیلاب سے جانی و مالی نقصان کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1596 ہو گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان میں 30 ارب 4 کروڑ سے زائد رقم تقسیم۔ گزشتہ روز آرمی ایوی ایشن کے 10 ہیلی کاپٹر پروازوں نے 14 ٹن سے زائد امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچایا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور طبی کیمپ قائم۔
پاک بحریہ اور فضائیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں سرگرمیاں جاری، سیلاب میں پھنسے مقامی لوگوں کو نکال کر انہیں گاڑیوں، ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ملک بھر میں کرونا کے 93 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.57 رہی۔ وائرس سے متاثرہ مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ کرونا کے 76 مریضوں کی حالت تشویشناک، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 16,397 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ قومی ادارے صحت۔ بھارت میں اقلیتوں کی زندگی اجیرن، گزشتہ 5 برس میں دلت خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافہ۔ اتر پردیش میں گزشتہ ہفتے 2 بہنوں کی لاشیں برآمد، پوسٹ مارٹم میں جنسی زیادتی کے بعد گلا گھونٹ کر قتل ثابت۔ یہ واقعہ بھارت میں دلت کو درپیش جنسی تشدد کے مسئلے کی تازہ کڑی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں تیزی، روسی صدر کی جانب سے 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کو متحرک کرنے اور بوقت ضرورت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا اعلان۔ یوکرینی صدر کا اقوام متحدہ سے روس کے خلاف اقدامات کا مطالبہ، ویٹو پاور بھی واپس لے لی جائے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ نیو یارک میں یورپی یونین وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس، روس کے نئے اقدامات سے پیدا شدہ صورتحال پر غور، یوکرین کی فوجی مدد جاری رکھنے اور روسی معیشت کے مخصوص شعبوں کو ہدف بنانے کے لیے نیا پیکیج لانے پر اتفاق۔ کراچی میں گرین شرٹس کا انگلینڈ کو بھرپور جواب، دوسرا T20 میچ 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ انگلینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 199 رن بنائے، پاکستان نے ہدف آخری اوور میں بغیر نقصان کے حاصل کر لیا۔ تیسرا میچ آج کراچی میں ہی کھیلا جائے گا، سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ انگلینڈ کے خلاف محمد رضوان اور بابر اعظم کی دھواں دھار بیٹنگ، بابر اعظم کی T20 انٹرنیشنل کی دوسری سینچری، اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ محمد رضوان کے ناٹ آؤٹ 88 رنز، 1800 سے زائد رنز اور 7 سینچری پارٹنرشپ کے ساتھ بابر اور رضوان کی جوڑی T20 انٹرنیشنل کی کامیاب ترین جوڑی بن گئی۔ اور فرانس میں موزیل اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل، ٹاپ سیڈ روس کے ڈینیل میدویدیو کو سوئٹزرلینڈ کے اسٹین وورنکا کے ہاتھوں اپ سیٹ شکست، ڈنمارک کے ہولگر ریون لاسٹ 8 میں پہنچ گئے، آسٹریا کے ڈومینک تھیم اور فرانس کے سیمون جائلز کا بھی سفر تمام۔ Out. Mr. Team is turning the call. Ball was called. Demanche 0-6 points. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی، باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے آج خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے یہ پہلا خطاب ہوگا جس میں وہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں سے دنیا کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام عالم سے اپیل کریں گے کہ اس قدرتی آفت سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 193 رکن ملکوں پر مشتمل ہے۔ جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں 140 ملکوں کے سربراہان اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد پہلی مرتبہ عالمی رہنما نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج نیو یارک میں اپنے ہالینڈ کے ہم منصب مارک رٹ سے 2 طرفہ امور پر ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم امریکی کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن لی کے ساتھ زوم ملاقات میں بھی شریک ہوں گے۔ سپہر میں وزیر اعظم سے ملالہ فنڈ کی شریک بانی ملالہ یوسفزئی کی ملاقات ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس، بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس اور بیلجیم کی وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کروڈ سے ملاقاتیں ہوئیں۔
तफसील जानेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास की रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बर वक्त दौरा करने और सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी ताउन को मुतहर्रिक करने के हवाले से उनके अज़्म को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के लिए तमाम मुमकिन ताउन को मुतहर्रिक करने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी की भरपूर इमदाद का मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तरफ दिलाई और तवक्को जाहिर की कि सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल में अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को सैलाब से अवाम की जिंदगियों पर पड़ने वाले असरात और अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अपनी फाउंडेशन की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अपने भरपूर अज़म का इरादा किया। बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम को अपनी तरजीहात में शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि पोलियो प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब से मुतासरा इलाकों में मलेरिया, डेंगू और पानी से पैदा होने वाली दीगर बीमारियों की निगरानी में किस कदर मुफीद साबित हो रहा है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से जारी पोलियो प्रोग्राम के तहत सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1200 तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर डी क्रो की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात यूएन जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तवानाई समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने और अहम उमूर पर करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अवाम के लिए भी मुबारकबाद का पैगाम दिया। उन्होंने सऊदी अरब के अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से इमदादी सामान की तरसील के लिए एयर ब्रिज के क़याम और अतियात वसूल करने के लिए पोर्टल के आगाज़ पर खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में सैलाब के दौरान कीमती जानों और लोगों के ज़रिया माश के ज़या पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतासरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहते हुए सऊदी वली अहद को बरादर मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और ताउन के ज़रिए मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी से आगाह किया। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का मकसद सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को उजागर करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नुमाइश देखी और इसके इनेकाद को सराहा। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वजारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटेरिएट लॉबी में फ्लड्स इन पाकिस्तान एक क्लाइमेट कॉर्नेज के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश के जरिए जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आए सरबराहान और मंदोबीन को भी पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में आने वाली कुदरती आफत से होने वाली तबाही से आगाही मिल रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल कम्युनिकेशन की सरबराह मलीसा फ्लेमिंग के हमरा तस्वीरी नुमाइश देखी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तस्वीरें सैलाब मुतासरीन के दुख और तकलीफ की दास्तान की अक्कासी कर रही हैं। पाकिस्तान की 3 करोड़ से जायद आबादी जिन मसाइब का शिकार है, इनकी वो कसूरवार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी दास्तान हमदर्दाना गौर की मुतकाजी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस दुखी इंसानियत की आवाज के तौर पर अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन सैलाबी तबाही से गुजर रहा है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने खतरनाक कॉन्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाज़ा है, इससे भी बढ़ सकता है। सेक्रेटरी जनरल से मैंने मीटिंग की है और वो ऐसे आदमी हैं जो कि दुखी इंसानियत की भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस का
इनकाद कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी और प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान ने भी और ईरान के सदर ने और तमाम जो अमान है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से इमदाद की बात की। अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल कम्युनिकेशन की सरबराह मेलिसा फ्लीमिंग ने कहा कि मौसमियाती तगय्युर के बाइस पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में बड़ी कुदरती आफत का सामना है। उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी है। It's mass destruction in real time, and if people don't believe that climate change is devastating our world, then they need to go and look at Pakistan. But more than that, we need everybody to understand that we need action, 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 but we also need to help Pakistan. Right now, Pakistan needs funding. Its people are suffering now. They need to be able to rebuild. And they need also climate justice. जनरल असेंबली इजलास के मौके पर हफ्ता भर जारी रहने वाली इस तस्वीरी नुमाइश से जहां मौसमियाती तब्दीली के असरात उजागर होंगे, वहीं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी सतह पर आगाही भी पैदा होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के तहत मुकालमे में कहा है कि पाकिस्तान को तारीख के बड़े सैलाब का सामना है, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। उन्होंने कहा कि सैलाब की सूरत हाल में IMF से रिलीफ के लिए बातचीत जारी है। The disaster comes, the disaster goes, and you deal with the aftermath. But more than a month on, we're still in an active disaster. That 100-kilometer lake is still descending towards the ocean, leaving devastation in its wake. It was a third of the landmass of my country that was underwater. 1 in 7 people affected, 33 million people. More than the population of New York State, more than the population of Sri Lanka, 95% of the population of Canada. We are amongst the 10 most climate-stressed countries on the planet. I think officially we're number 8. So I'm here, and I'm speaking to the United Nations and various different countries, and I'm extremely grateful. I mean, the UN Secretary General came himself to Pakistan, delegation after delegation from the United States, including USAID, congressional delegation, and others have come and offered assistance. But I don't want to beg for aid or for dole. I want justice for my people. I want climate justice. We want to be able to rebuild their lives and livelihoods in a just manner. इस्लामी ताउन तंजीम का सालाना राब्ता इजलास न्यूयॉर्क में हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने OIC वुज़राए ख़ारजा काउंसिल के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1945 में कायम किए गए तरीक़ाकार दबाव का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मालदीव के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला शाहिद के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मौसमियाती तबाही दोनों ममालिक की ज़िंदगी और माश को मुतासिर कर रही है। 2 रोज़ा इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। तफसील जानेंगे एजाज हुसैन से। इंसाफ की फराहमी के 75 साल, माजी की कारगुजारी और मुस्तकबिल के लाहे अमल के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस और गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट के चीफ जज भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकला समेत दुनिया भर से माहिरीन कानून और मुबस्सरीन भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान निज़ाम अदल को दरपेश चैलेंजेस और इस निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। हर ग्रुप में इंसाफ की फराहमी के अमल में अदलिया के अलावा इस अमल से जुड़े इदारों और महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और IT समेत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी में पुलिस, इस्तगासा और वकला का किरदार, मौजूदा बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस और अदलिया का रद्द अमल, मुआशी चैलेंजेस और तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही और इख्तितामी तकारीब से खिताब करेंगे। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। अदालत ने मजीद कहा कि वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर कैंसिल उस वक्त होंगे जब मुलजिम अदालत के सामने पेश होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार के दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब के बायस हेल्थ डिजास्टर है, अद्वियात की सख्त ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट लॉबी में वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तस्वीरी नुमाइश के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों की आमद है, सैलाब मुतासरीन को कंबल, गर्म कपड़ों और चादरों वगैरह की अशद ज़रूरत है। सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें कंबल, खेल, शॉल्स, गर्म कपड़े जो जिस तरह देना चाहता है, चाहे वो NDMAs के थ्रू देना चाहता है जो डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के थ्रू देना चाहते हैं, चाहे वो खुद देना चाहते हैं। तो हमारे पास जो फील्ड से डेटा आता है, जो फील्ड से इंफॉर्मेशन आती है, उसमें बच्चों के दूध की, बच्चों के मिल्क, उसकी बेबी फूड की और गर्म चीज़ों की जो इस वक्त और टेंटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंध में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था और फिर बलूचिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान को पहली किस्त में भी मिल गए थे और उनकी जो डिज़ास्टर के अकॉर्डिंगली नीड बेस्ड जो है इस वक्त हो रही है। तो NDMA अपना डेटा भी रिलीज़ करता है पब्लिक के लिए और उसमें हर रोज़ SN इकबाल साहब ये बताते भी हैं कि कौन सी जगह के ऊपर कौन सी चीज़ ज़रूरत है जो कंट्रीब्यूट की जा सकती है। तो ये तमाम काविशें हैं जो इकट्ठे की जा रही है और अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो प्राइम मिनिस्टर जो कल मीटिंग ली थी जहाँ ये पता चला था कि पैनाडोल और पैरासिटामोल की कमी है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का ये कैटेगोरिक डिसीजन है कि उसकी कीमत जो है प्रोडक्शन की वो नहीं बढ़ेगी और उसमें अगर हमें सब्सिडी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि सब्सिडी दी जाए जो पैनाडोल और पैरासिटामोल, बिकॉज इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। रेलवे के वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि कौम सैलाब की आफत का सामना कर रही है मगर इमरान खान सियासत कर रहा है, 10 करोड़ रुपए लगाकर जलसा कर रहा है मगर कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार की सियासत चाहता है, सियासत में दौंस और धमकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं। कोई शर्म कोई हया है इमरान खान को? कोई शर्म हया खान साहब के करीब से भी गुजरी है? मेरा ख्याल है करीब से भी नहीं गुजरी। यानी ये रवायत रही है पाकिस्तान में कि कोई कौमी सानिया हुआ तो तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देती थी। वफाकी वजीर ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट का मकसद हर किसी को शनाख्त देना है, किसी को हुकूक देने से महरूम नहीं किया जा सकता। इससे कबल लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अदालत के रूबरू पेश हुए और अपनी हाजिरी मुकम्मल की। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब करते हुए केस पर मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाके बदियन जाएंगे। आर्मी चीफ रिलीफ के कामों में मसरूफ फौजियों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान से बातचीत मुमकिन नहीं, मुमकिना इंतशार को रोकने के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं। सूबों से पुलिस फोर्स मांगी है, नफरी भिजवाने से इनकार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कही। बताइएगा कि सूबों से आपने पुलिस मांगी है तो 2 सूबों में तो बराह रास्त उनकी हुकूमत है, अगर वो आपको पुलिस या अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। जब खान साहब अपने आने का इरादा ज़ाहिर करेंगे तो उसके बाद फिर नए सिरे से जो भी। अच्छा राना साहब ये बताइएगा
हालिया सैलाब से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है और कमोबेश 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस कुदरती आफत से किसी न किसी तरह मुतासर हुए हैं। NDMA की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 14 जून से अब तक 1596 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिनमें से 724 सिंध, 306 खैबर पख्तूनख्वा, 304 बलूचिस्तान, 191 पंजाब, 48 आज़ाद कश्मीर और 22 गिलगित बल्तिस्तान से हैं। ज़ख्मियों की मजमूई तादाद 12,863 है। इस अरसे के दौरान 20,16,000 घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए, जबकि 392 पुल सैलाबी रेलों में बह गए। 13,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें भी तबाह हुईं, जिनमें से ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ, जहां 8,400 किलोमीटर सड़कें सफ़र के काबिल नहीं रहीं। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 10,40,735 मवेशी भी हलाक हुए। इनमें से 5 लाख जानवर सिर्फ बलूचिस्तान में कुदरती आफत का शिकार हुए हैं। NDMA के मुताबिक मुतासरा लोगों को माली मुआवनत की फराहमी का सिलसिला जारी है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अब तक 57 अरब 54 करोड़ और 13.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम मुतासरीन में तकसीम की जा चुकी है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से ज़िला कोहलू में मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। PDM में बलूचिस्तान के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद में 3 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। सूबे भर में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 310, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 184 हो गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक सैलाब से 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 1,90,000 से ज़ायद घर मुतासर हुए हैं, जिसमें 65,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 1,25,000 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। सैलाब से 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे को भी नुकसान पहुँचा और ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 4,500 से ज़ायद ट्यूबवेल्स और सोलर सिस्टम को भी नुकसान पहुँचा है। सैलाब से 2,198 किलोमीटर सड़कों और 24 राब्ता पुलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। हुकूमत बलूचिस्तान मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, हरनाई के मुख्तलिफ देहातों में सैलाब मुतासरीन के लिए फलाही इदारों की जानिब से राशन, साफ पानी और दीगर घरेलू अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरबाब सईद कांसी ने कहा कि हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में 109 से ज़ायद मुतासरा ख़ानदानों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुसीबत ज़दा ख़ानदानों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे जब तक सैलाब मुतासरीन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाते। कौमी फरीज़ा समझकर उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट्स भी सैलाब मुतासरीन में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की तशख़ीस के लिए सरगर्म अमल है। पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों ने सैलाबज़दा इलाकों में फंसे मकामी लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों ने मुतासरा अफराद में खुश्क राशन, पका हुआ खाना, पीने का साफ़ पानी और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया तकसीम की, जिनमें 18,310 पके हुए खाने के पैकेट, 650 पानी की बोतलें और 1,472 खुश्क राशन के पैकेट ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किए हैं। नाज़रीन, सिंध में बारिशों का सिलसिला रुके हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन बेशतर इलाकों के रास्ते अब भी ज़ेर आब हैं और दही इलाकों के अवाम मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जुही की बिना पर खासे मुश्किल में है। तफसील बता रहे हैं मलिक इमरान शाहिद। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों का सिलसिला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ख़त्म तो हो चुका है, मगर अवाम के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तालका किंगरी में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिशों के बाद जो है जो सिलसिला रुका, वहाँ सैकड़ों जो है लोगों के घर तो गिरे, मगर अब जो वहाँ असल मसाइल दरपेश हैं वो नकासी आब के हैं। तकरीबन बेशतर इलाकों में नकासी आब का इंतज़ाम नहीं किया जा सका। नकासी आब का निज़ाम ना होने के बायस इलाके में मुतअद्दिद अमराज जो है वो जन्म ले रहे हैं। यहाँ पर मच्छरों की अब बहुतात के बायस मलेरिया, डायरिया और दीगर मसाइल जो है अवाम में बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ के अवाम जो है शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। रस्तो निकिरण जो इन जो ना है, मलेरिया ॾाढी आहे। अॻे सरकारी फुहारा ये थींदा, हाणे नथा थियनि। कोई असां वटि बीमार ॿार बाचा सॼो असांजो कोई निकिरण जो असांखे काॾहें बि न आहे। नेकर न को छा, असांजा कुल माण्हू
परेशान लगा पिया हूँ बंद। सिंध गवर्नमेंट या कोई भी इंतजामिया जो लोकल इंतजामिया है वो अभी तक हमारे पास किसी मतलब जो पानी का निकाल है उसके सिलसिले में कोई भी नहीं है। सूरत हाल इंतहाई जो है ख़राब है। कुछ इलाकों में लोग अपनी मदद आपके तहत तो पानी की निकासी का इंतज़ाम कर रहे हैं, तहम बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की निकासी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, बारिशों से खैरपुर ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों समेत 1000 से ज़्यादा घरों पर मुश्तमिल कदीमी गोठ गफ़ार शाह बुरी तरह मुतासर हुआ है। गोठ गफ्फार शाह के 95% घर रहने के काबिल नहीं रहे। दूसरे मकीनों के साथ एक माजूर और अपाहज खानदान भी मुतासिर हुआ है। तफसील जानते हैं अब्दुल खालिक चौहान से। हालिया बारिशों ने खैरपुर ज़िला के दीगर इलाकों में नुकसान के साथ साथ खैरपुर के करीब गोठ गफ़ार शाह में भी तबाही कर दी है। 1000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल इस गोट में 95% घर बिल्कुल मलिया मेट हो चुके हैं। इस गोट में दीगर रिहाइशों के साथ साथ एक माजूर ख़ानदान भी है जिसमें 3 नौजवान और उनकी एक ज़ईफ़ वालदा है। 3 माजूर नौजवानों का कहना है कि उनके पास एक कमरे पर मुश्तमिल एक छत थी पर बारिश ने उसे भी ख़त्म कर दिया और वो इस वक्त बिल्कुल बेसहारा बेयारो मददगार हैं। मां रुदगो साईं मरी वियो आहे, असांखे कंहिं मदद न कई, न असांखे राशन मिलियो आहे, कुझु बि न मिलियो आहे। ॿियो टियों ॾींहुं असां पाण बुख मरूं था। असांजी मदद करे वञनि, असां वटि का शइ बि न आहे, पर इहो DC ऑफिस खे बि इहो अर्ज़ु असांखे ॾिसे, असांखे जे लाइक़ु आहियूं त असांखे हक़ मिले। इस माजूर ख़ानदान का सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि उनके घर की तामीर के साथ साथ उनको राशन फराहम किया जाए। नाज़रीन, सैलाब तो गुजर गया मगर अपने पीछे शहर के शहर, गांव के गांव बहा कर ले गया। टंडू हाफिज शाह भी ऐसे ही गांव में शामिल है जहां तबाही और बर्बादी फैल गई। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पूरे पाकिस्तान में तबाही फैलाने के बाद सैलाब ने ठट्टा को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 150 किलोमीटर का कच्चे का इलाका पूरा ज़ेर-ए-आब आ गया। उस रास्ते में आने वाले तमाम छोटे बड़े शहर तबाह हो गए, रास्ते टूट गए। इसी तरह एक शहर टंडो हाफिज शाह है जो दरिया सिंध के बिल्कुल साथ है। टंडो हाफिज शाह शहर का तमाम कच्चे और पक्के मकानात गिर गए। अचानक पानी दाखिल हुआ तो लोग बड़ी मुश्किलों से जान बचा के निकले और उन्होंने कोहिस्तानी इलाकों में अपनी मदद आपके तहत पनाह ली हुई है। टंडो हाफिज शाह में जितने भी फसलें थी, जिसमें चावल की फसल, टमाटर की फसल, गन्ने की फसल, केले की फसल, तमाम ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इस वक्त विलेज सईद सरदार टंडू शाह में मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन 20 घर थे। वो तकरीबन 20 घर ही सारे ख़त्म हो गए हैं। उसमें कुछ पक्के थे, कुछ कच्चे घर थे, वो सारे ख़त्म हो गए। कमन का फसल था, कपास का था और गंदम जो सारे फसल थे वो ख़त्म हो गए। में एग्रीकल्चर भी है, लाइव स्टॉक के हवाले से जो जानवर वगैरह हैं उनके लिए चारा भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 महीने के बाद कुछ फसल वगैरह लगेंगे। इसमें ये इक़दामात हैं कि जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा तो हम उसकी डी वाटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो कट्स आए हैं रोड्स में वो भी हम फिल कर रहे हैं कि हम अर्जेंट बेसिस पे कट्स फिल करके उनको जो अपना फ्लड इफेक्टीज़ है उनको अपने घरों को भेजा जाए। उसके अलावा जैसा कि स्कूल्स हैं वहाँ पे वो भी सबमर्ज हो गए थे तो वहाँ पे भी जो है वो बहाली का काम तेज़ी से जारी है। ज़मींदारों को कहना यह है कि अभी तक हुकूमत ने हमारे से अभी तक कोई भी मदद करने की ना कोशिश की ना बातचीत की है। हम बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर आ गए, हमारी तमाम फसलें तबाह हो गई हैं। मिर्ज़ा हसन बेग हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, आपको बताएं हालिया बारिशों के बायस बन्नो आखिल की तमाम यूनियन कमेटीज़ में से बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत दूसरे अमराज में इजाफा हो रहा है। गाँव के बच्चों की तालीम भी मुकम्मल तौर पर मुतासर हो रही है। महकमा बल्दियात और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ गाँव और यूनियन कमेटी से बारिश के पानी को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तफसील बता रही हैं ज़ुबैर अंधड़। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नो आकिल की यूनियन कमेटी हिंगोरो में, जहाँ हालिया बारिशों के बाद इस इलाके में से बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका है। मुसलसल बारिश के पानी खड़े होने के बायस यहाँ पर मच्छरों समेत जो दीगर जहरीले जीत हैं वो जन्म ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं। उन बीमारियों पर कंट्रोल पाने के लिए यहाँ पर महकमे सेहत की जानिब से भी सहूलियात मौजूद नहीं हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो गांव के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब हैं। वहाँ पर जो बच्चे हैं
उनकी जो तालीम है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो रही है। पानी जो है बायजी सिप्पी और नौरार या मैनर वो दोनों का पानी यहाँ पे जमा है। अभी हमारे हालात ऐसे हैं तो बिल्कुल तालीम जो है हमारी तबाह हो रही है और सेहत का हमें जो है बच्चों की बीमारी, मवेशियों की बीमारी, काफ़ी मवेशी मर गई है। बरसातें इतनी ज़्यादा आ गई, काफ़ी तादाद में हमारे यूनियन काउंसिलों के गाँव कुछ इलाकों डूबे हुए हैं, कुछ में पानी निकल गया है, कुछ में खड़ी हैं। मेरी जो यूनियन काउंसिल की हैसियत है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारा पानी का भी काम चल रहा है, डेली बेसिस पे मच्छर मार स्प्रे भी चल रहा है। 24 आवर यहाँ पर मौजूद है। हमने अपने अभी जो पंपिंग स्टार्ट किया है, तकरीबन 1000 एकड़ के लगभग जो ज़मीन है उसमें पानी 1.5-2 फुट के लगभग भरा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि कुछ दिनों के अंदर हम कोशिश करके हम कम करने महकमे बल्दियात और ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों से ये बारिश का पानी यहाँ से निकाला जा सकता है। जी शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाज़रीन। अब आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहाँ भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी है और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारतीय फ़ौज और पुलिस की सरपरस्ती में मकबूजा इलाके में जारी क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान रवां हफ्ते 100 से ज़ायद बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में उलमाए दीन, हुर्रियत कारकुनान और जमात इस्लामी के अरकान शामिल हैं। सहाफ़ी, वकला, तलबा और सरकारी मुलाजमीन भी भारतीय हुकूमत के निशाने पर हैं। उनका मकसद मकबूजा इलाके में अपने हिंदुत्व एजेंडे को बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ाना है। जम्मू की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि तिहाड़ जेल के हुकाम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने वाली समाअत पर JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को अदालत में पेश करें। जिनेवा में कश्मीरी नुमाइंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में एजेंडा आइटम 3 के तहत बहस पर हिस्सा लेते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों की वजह से मसला कश्मीर जनूबी एशिया में जौहरी फ्लैश पॉइंट बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास के मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी जब्र, आबादी के तनासुब में तब्दीली, मजहबी और तहजीबी जारहियत के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया कि भारतीय तसल्लुत में रहने वाले कश्मीरियों की हालत ज़ार का जायज़ा लेने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में टीमें भेजी जाएँ। नाज़रीन, भारत मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार करता जा रहा है। भारतीय कौमी तफ्तीशी एजेंसी की क़यादत में मुख्तलिफ एजेंसियों ने मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुल्क गिर छापों में 100 से ज़्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। भारत की 10 से ज़ायद रियासतों में PFI तंजीम के दफातर पर छापे मारे गए। हुकाम के मुताबिक भारत में ये आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें NIA के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और रियासती पुलिस फोर्सेज भी शामिल थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन छापों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये फस्ताई हुकूमत की तरफ से ज्यादतियों की ताज़ा मिसाल है। आपको बताएं कि पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि नौजवान नस्ल का मुआशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। इंसानियत की खिदमत और बामकसद ज़िंदगी इल्म का हासिल है। लाहौर में फलाही इदारे के तहत चलने वाले स्कूल के तलबा के वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तालीम से वाबस्ता है, इसलिए तलबा किताबों को अपना दोस्त बनाएं। उन्होंने कहा कि तलबा दिल लगाकर तालीम हासिल करें और मुल्क व कौम की खिदमत करें। तालीम का मकसद अपने अंदर आला अखलाकी इक़दार को पैदा करना है। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सैलाब ने सैकड़ों स्कूलों को मुतासिर किया, जिससे लाखों बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल वक्त अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के साथ खड़ा होने का है। गवर्नर पंजाब ने तलबा के वफ़द को गवर्नर हाउस की तारीख से भी आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील सिब्बी 41, नौकुंडी, भक्कर, जोहराबाद और खानपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।